Assalamualaikum dear students. This is class 7 physics lecture. So in this lecture you are going to learn about heat. So let's begin. Heat is a form of energy which provides us the sensation of warmth. So what is heat? Heat जो है वो एक किस्म है एनर्जी का जिससे हम लोग गर्माहट महसूस करते हैं. And this heat can be transferred from one object to the another. ये जो हीट है ये ट्रांसफर होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में. नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन, कब ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है. ओके, सो सिंपली heat transfer takes place from hot to cold body unless they gain thermal equilibrium. What is equilibrium? इक्विलिब्रियम इज नथिंग जस्ट व्हेन दो बॉडीज जो कांटेक्ट में होंगी उनका जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाएगा एंड दैट स्टेज इज व्हाट वी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम. सो मैंने क्या कहा? सो सिंपली हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी. जो हीट होती है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी अनलेस द टेम्परेचर बिकम्स सेम. ओके, so in other words, we can say the transfer or flow due to difference in temperature between two objects is what we call as heat. So simply जो flow होता है, जो दो bodies कंटैक्ट में होती है उनके बीच में आपस में मतलब उनके आपस में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है और इस वजह से जो क्या होता है, इस वजह से दो के बीच में हीट फ्लो करती है और उसी को हम लोग हीट कहते हैं. दैट्स सिंपल. So the transfer or flow due to difference in temperature is what we call as heat. So we can say the heat means energy which is moved between things or objects when one of them is hotter than the another. Isn't it? तो हीट जो है उसका मतलब है एनर्जी जो दो चीज़ों के या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मूव होती है जब एक गर्म होता है और एक सर्द होता है. Isn't it? एंड उसकी जो डायरेक्शन होती है, द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी फ्लो इज फ्रॉम सबस्टेंस ऑफ हायर टेम्परेचर टू द सबस्टेंस ऑफ लोअर टेम्परेचर. एज आई अर्लियर सेड, मैंने ऑलरेडी कहा द डायरेक्शन जो होती है, जो दिशा होती है एनर्जी फ्लो की, वो क्या होती है? वो हायर टेम्परेचर जिसका होता है वहां से फ्लो करती है उस बॉडी की तरफ जिसका लोअर टेम्परेचर होता है. Isn't it? The heat is measured in units of energy as we call it heat energy. So it's measured in units of energy, and what is that? That is usually calories or joules. In your own home. Okay, so what will you do? You take 3 beakers or 3 bowls. ठीक है, 3 bowls लो, तीन कटोरे लो, बेसिकली 3 कटोरे लो. एक में डालो गर्म पानी. ठीक है, गर्म पानी एज इन लाइक 50 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस इतना गर्म पानी डालो. इस वाले में डालो आप ठंडा पानी, एकदम ठंडा पानी जिसमें आइस डाल के रखा हो, इतना ठंडा पानी. और बीच में इन दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा पानी इसमें डालो. ठीक है, now what are you going to do? Dip your right hand in the katora 1 and dip your left hand in the katora 3. ठीक है, थोड़ी देर के लिए रखो. उसके बाद क्या करो, दोनों हाथों को उठाओ एंड कीप इट इन द बी वाला, मिडिल वाला जिसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर रखा था, मॉडरेट टेम्परेचर वाटर रखा था, उसमें डालो. ठीक है, अब क्या होगा इसमें? What will happen? Your one hand, like this hand, will feel that this water is very cold. But your this hand, left hand, when you have already kept it in ice cold water, right? So now when you dip it in the katora B, what will happen? You will feel that the water is too hot. So now can you imagine? आप ही के शरीर का, your own body, your own 2 hands, but ये तो धोखा दे रहे हैं. एक बता रहा है कि ये ज्यादा ठंडा है और एक हाथ बता रहा है कि ये तो ज्यादा गर्म है. So do you realize now that your sense of touch is always not reliable? Based on your body temperature, you will find that, you know, the other temperatures around you are different. Cool? Now do you understand why it is not advisable that you should always touch and tell? So now that we cannot touch and tell always, I mean, we have realized that our sense of touch is not reliable. तो अब क्या करें हम? अब कैसे टेम्परेचर मेजर करें? That's a question that arises in your head, right? So what are we going to do is, now we have introduced to this picture thermometer. So how are we going to
How are we going to measure temperature? We are going to measure it by using a thermometer. ठीक है? पर उससे पहले तो मैंने क्या बोला था? If not our touch, what is reliable to measure hotness of an object? It is of course temperature, and the device that you use is thermometer. Let me just move aside and I think you can see it properly. Yeah, do you see it? How does the thermometer look? The thermometer looks like a long narrow glass tube with a bulb right here, right? With a bulb right here. And what do you see in the bulb? In the bulb you will be able to see that there is mercury. Have you ever noticed that? Have you ever noticed a mercury? Not a mercury, sorry. Have you ever noticed mercury? Right here you will find the mercury, ठीक है? और इसको ऐसे सीधा रखोगे तो आप देखोगे कि एक छोटा सा a very narrow line, like a very narrow line where the mercury passes and shows you the temperature. So this right here is known as what? It is known as clinical thermometer. Okay? What is it known as? It is known as clinical thermometer. People actually do not know how to read a thermometer. ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप जैसे स्केल पढ़ते हो, you have a geometry box में एक स्केल होता है, राइट? तो स्केल में क्या करते हो आप? उस स्केल में आप सबसे पहले ये देखते हो कि यहाँ पे, तो सबसे पहले आप एक स्केल ले लो. स्केल पे आपको क्या दिखेगा? हमेशा यहाँ पे देखो बच्चा, ठीक है? तो स्केल में आपको एक मिलेगा ऐसा बड़ा डिवीजन, दूसरा एक और बड़ा डिवीजन, और बीच में होता है कई सारे ऐसे छोटे छोटे डिवीजन, राइट? करेक्ट? राइट? तो सेम थिंग यू आर गोइंग टू डू विद द थर्मोमीटर एज वेल. थर्मोमीटर को लो और अच्छे से देखो कि वेयर इज द बिगर मार्क्स के बिटवीन कितने सारे छोटे मार्क्स है, एंड इससे आपको पता लग जाएगा कि एक छोटा डिवीजन कितना रीडिंग बता रहा है. ठीक है? ऑलराइट, एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? तो मान लो देयर इज अ टेम्परेचर डिवीजन, लेट्स से दिस इज 37 एंड दिस इज लेट्स से 38, और बीच में देयर आर 10 डिवीजन. तो एक डिवीजन विल बी इक्वल टू 0.1. करेक्ट? एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? ठीक है? सो दैट्स एग्जैक्टली द सेम वे यू हैव टू टेक अ मेजरमेंट इन थर्मोमीटर. सबसे पहले क्या करोगे? दो बड़ा डिवीजन का पता लगाओगे और उनके बीच में छोटे छोटे कितने डिवीजन है, ठीक है, वो पता लगाओगे. उससे आपको पता चल जाएगा कि एक छोटा डिवीजन कितना मेजर करता है. ऑलराइट, आफ्टर दैट, तो ये दोनों मैंने बता दिया, ये दो पॉइंट्स मैंने बता दिया. ठीक है? ऑलराइट, अभी आपको क्या करना है? वॉश द थर्मोमीटर विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन ऑलवेज. क्यों? क्योंकि आपके अलावा भी और कई लोग होंगे जो इस थर्मोमीटर को इस्तेमाल करें. और थर्मोमीटर कब इस्तेमाल होता है? जब आप बीमार होते हो, है ना? when you are ill, when you are sick, you're not well, right? And you put it in your mouth to measure the temperature. So now you tell me, if you are not using an antiseptic solution to wash it down, won't the other person who is using it just after you will also get the disease that you are suffering from? That is why you are supposed to use an antiseptic solution to clean it. Moving on, hold it firmly and give it a few jerks. Why? Because it is quite possible that thermometer में जो mercury है, it will rise up based on the temperature that is there. Okay? तो क्या होगा? आप क्या करोगे? उसको अच्छे से jerk दोगे ताकि जो mercury है that is absolutely in the bulb. ठीक है? और उसके बाद when you keep it in your mouth, it will rise up, it will expand and it will give you a good reading. ठीक है? Clear? आगे बढ़ के, ठीक है, प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग. यू आर सपोज टू कीप इट अंडर योर टंग. ठीक है? ऊपर नहीं, नीचे, टंग के नीचे. एंड टेक इट आउट आफ्टर अ मिनट एंड टेक द रीडिंग. दैट्स इट. थर्मोमीटर. अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर पता है क्या होता है? काफी लंबा होता है. देखो, क्लिनिकल थर्मोमीटर तो इतना सा छोटा होता है बस, है ना? लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज दिस लॉन्ग, और उसकी टेम्परेचर रेंज पता है क्या होती है? 10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. क्यों भाई? क्योंकि when you are doing experiments in the lab, काफी बार ऐसा हो सकता है कि आपको एकदम कम से कम टेम्परेचर चाहिए या फिर एकदम ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए. ठीक है? तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में this range is very important. And moving on to the precautions of this, what is the precautions that laboratory thermometer में it should always be upright. ठीक है? upright, वो हमेशा सीधा होना चाहिए. ऐसे जैसे मैंने इसको रखा है ना यहाँ पे, ऐसे करके तिरछा करके, it should never be tilted. ठीक है? it should always be upright. और लेबोरेटरी थर्मोमीटर को आप बाहर निकाल के फिर रीड नहीं कर सकते, like you do it in how you do it in clinical thermometer. आप मुंह से निकालते हो और उसके बाद पढ़ते हो. ठीक है? पर लेबोरेटरी थर्मोमीटर को ऐसा नहीं कर सकते. अगर if there is a setup
इफ देयर इज अ सेटअप, लेट्स से अ लैब सेटअप जहां पे कोई रिएक्शन हो रहा हो, तो आप रिएक्शन के पास जाके ऐसे करके देखोगे झुक के, ओके, इट शुड बी ऑन योर लाइन ऑफ साइट। आप झुक के देखोगे कि टेम्परेचर कहाँ पे है। यू आर नेवर गोइंग टू टेक इट आउट एंड रीड इट। व्हाई नाउ? I'm gonna tell you this, okay? Why should you not be doing this? Because आपने देखा होगा, अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को एक बार अच्छे से देखोगे ना, तो जस्ट राइट आफ्टर दिस बल्ब यू विल फाइंड अ किंक हियर, ठीक है? ऐसा कुछ एक मिलता है, एक ऐसा किंक मिलेगा छोटा सा, which does not allow the mercury to fall down. But in case of laboratory thermometer, this kink is not there, and what happens as soon as you take it out, what will happen? The temperature will fall down. ठीक है? Am I clear now? Guys, to something that is very important for our everyday life, that is sea breeze and land breeze. ठीक है? Sea breeze और land breeze होता है, ये आपको कोस्टल एरियाज में बहुत ज्यादा मिलेगा। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ते हैं। देखो, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में क्या होता है? यूजुअली व्हाट हैपेंस इज ड्यूरिंग द डे आपको पता है कि वाटर की बॉइलिंग टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ना पहुंच जाए वो बॉईल नहीं होगी। मतलब वाटर की टेम्परेचर है हाई, ठीक, मतलब वाटर टेक्स अ लॉट मोर टाइम टू गेट हीटेड अप, बल्कि दिस डज नॉट हैपन इन केस ऑफ लैंड। लैंड क्या होता है? थोड़ा सा हीट दो वो हीट हो जाता है, ठीक है? लैंड जल्दी हीट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? जैसे लैंड हीट हो जाता है जल्दी से, तो मतलब यहाँ पे जो एयर होगी दैट ऑल्सो बिकम्स हॉट, करेक्ट? और हमने क्या पढ़ा? हॉट एयर कहाँ जाती है? ट्रैवल करती है। हॉट एयर इज लाइटर, तो हॉट एयर क्या करती है? ऐसे आना शुरू करती है, ठीक है? हॉट एयर ऊपर से आना शुरू करती है। अब कोल्ड एयर को दिखता है कि ये जगह तो भाई खाली हो गई, खाली तो नहीं होना चाहिए, तो कोल्ड एयर क्या करती है? कोल्ड एयर भागते हुए आती है ऐसे, ठीक है? कोल्ड एयर भागते हुए ये खाली जगह को लेने के लिए आ जाता है। अब यहाँ देखो, कोल्ड एयर कहाँ से आ रहा है? कोल्ड एयर आ रहा है सी से, क्योंकि पानी ठंडा है, मिट्टी गर्म है, सी से आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे सी ब्रीज, ठीक है? जब आपके पास समुंदर से हवा आ रही है लैंड तक, तो यू विल कॉल इट सी ब्रीज, ठीक है? अब यहाँ पे ठीक उल्टा होता है। अब क्या होता है? पानी चलो पूरे दिन में आफ्टर द आफ्टरनून ऑल्सो इतनी देर से हीट मिल रही है, तो वो गर्म हो गई। अब पानी को हीट लूज करने में भी टाइम लगता है, तो ये पानी अभी भी गर्म है, ठीक है? पर लैंड क्या करती है? लैंड जल्दी से गर्म भी हो जाती है और जल्दी से ठंडा भी हो जाती है। अब लैंड क्या करेगी? लैंड के पास है कूल एयर और इसके पास है वार्म एयर। तो अगेन फ्रॉम द सी द वार्म एयर विल मूव दिस साइड, ठीक है? वार्म एयर जैसे ही मूव करना चालू करेगी, ये फिर ठंडी सी हवा जो है ये देखेगी कि भाई साहब यहाँ तो जगह खाली हो गया, जगह तो खाली नहीं होना चाहिए, तो ये भागती हुई आएगी यहाँ पे। तो इस बार हम क्या देख रहे हैं? ठंडा हवा कहाँ से आ रहा है? The cool breeze is coming from land this time, so we will call it land breeze. We will call it what? We will call it land breeze. ठीक है? Clear guys? What is sea breeze and what is land breeze? आया कैसे होती है? Hot body से cold body. अब ये hot body से cold body में जो transfer होती है, इसमें there are three ways of transfer, okay? Three modes of transfer. पहला वाला है conduction. कंडक्शन में क्या है? देखो, कंडक्शन में सबसे बड़ी बात है, कंडक्शन हैपेंस इन सॉलिड्स, ओनली एंड ओनली सॉलिड्स, ठीक है? जो भी कंडक्टर्स होते हैं ना, जो हीट को बोलते हैं कि आ जाओ, यू कैन गो थ्रू मी, दोज आर कंडक्टर्स, ठीक है? तो कंडक्टर्स जो होंगे सॉलिड कंडक्टर्स, ओनली थ्रू देम दिस प्रोसेस कैन हैपन। कंडक्शन कैन हैपन ओनली थ्रू व्हाट? ओनली थ्रू सॉलिड्स, ठीक है? Not in liquids, not in gases. Okay. So what is the definition here? The definition says that process of heat transfer from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. अब क्या कर सकते हो इस पे? गैस जलाओ घर पे, ठीक है? एक चम्मच पकड़ो और गैस के उसमें बर्नर में रखो। क्या होगा? थोड़ी देर के बाद you will feel that the other end, जिसको आपने पकड़ रखा था, वो तो टच ही नहीं कर रहा है फायर के साथ, पर वो भी हॉट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। हर एक सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स होता है, आपको पता है, मॉलिक्यूल्स की कोई मूवमेंट नहीं है। जस्ट द फैक्ट दैट जैसे ही हमने
यहाँ पे आग दिया, राइट? यहाँ पे व्हाट आर वी प्रोवाइडिंग? वी आर प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी राइट हियर। तो हीट एनर्जी हैज बीन प्रोवाइडेड हियर, और क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल जो भी, लेट्स से कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, तो इस मॉलिक्यूल ने क्या किया, दूसरे वाले पास वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर किया, ये तीसरा वाला इसने चौथे वाले को ट्रांसफर किया, ऐसे ऐसे हीट ट्रांसफर होती गई मॉलिक्यूल में और यहाँ तक पहुंच गई, करेक्ट? ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली हाउ कंडक्शन हैपेंस, ठीक है? ऑलराइट, नाउ यहाँ पे क्या होता है, देखो, द बॉडीज थ्रू विच हीट ट्रांसफर मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट, यहाँ पे इट इज अ कॉन्टैक्ट मोड, मतलब सारे चीजों को टच में रहना पड़ेगा। occurs only in solids where molecules are held by strong. This is quite an important mode of transfer of heat, and I really need you to concentrate here very well, ठीक है? concentrate करो, अच्छे से focus करो, आपको सब समझ आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, this convection happens in case of liquids and gases, ठीक है? basically fluids, आप क्या बोल सकते हो, liquids और fluids को we can also call them liquids and gases को we can call them fluids, ठीक है? both liquids and gases। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है? ये एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, हमने क्या किया, वी हैव टेकन अ ग्लास जार, उसमें पानी भर दिया और 1 pinch ऑफ पोटेशियम परमंगनेट डाल दिया। पोटेशियम परमंगनेट इज पिंक इन कलर एंड यू माइट सी समवेयर एल्स दैट की इट इज रिटन एज हाउ डू आई से इट कैन बी रिटन एज KMNO4, ठीक है? KMNO4। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम परमंगनेट, इट इज पिंक इन कलर। तो अब अगर, एंड नाउ यू हैव केप्ट अ बर्नर हियर, ठीक है? यू हैव केप्ट अ बर्नर हियर, तो यहाँ से हीट जा रही है। अब क्या होगा, पानी जो है इस पोजीशन पे राइट हियर, यहाँ पे, कैन यू सी इट, कैन यू ऑल सी इट? ओके, लेट मी ट्राई अ ग्रीन कलर। तो इस पोजीशन पे राइट हियर पानी सबसे पहले हीट हो रही होगी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट हीट मिल रहा है, करेक्ट? तो ये हीट जो, जैसे ये हीट हुआ, क्या बन गया, ये हो गया थोड़ा सा लाइट, है ना? आपको पता है हॉट एयर और हॉट लिक्विड इज लाइटर देन कोल्ड एयर और कोल्ड लिक्विड, करेक्ट? तो यहाँ पे ये जैसे ही हो गया, ये क्या हो गया, लाइटर हो गया, तो ये चला जाएगा ऊपर, ट्रांसफर करेगा, ठीक है? जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये जगह हो गई खाली, ये जहाँ पे ये हॉट लिक्विड थी ये हो गई खाली, तो ये क्या करेगी, ये जो यहाँ से जो कोल्ड वाटर है ये यहाँ पे जल्दी से जल्दी आ जाएगी ताकि वो जगह ले ले, करेक्ट? ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हॉट ऊपर जा रहा है और कोल्ड जो है वो बार बार ऐसे आ रहा है। तो ये चीज दोबारा तीसरी बारी ये कंटिन्यूअसली होता रहता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन, ठीक है? कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विद द एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन प्लेस विद इन द बॉडी टू द अदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है, the hot liquid from here is going upwards, एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है, राइट? पिछले वाले में क्या हो रहा था, मूवमेंट नहीं हो रही थी, सिर्फ मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दी थी एंड दे गेव पास द एनर्जी टू द अदर मॉलिक्यूल, पर यहाँ पे एक्चुअली में वो मूव कर रहे हैं, ठीक है? गॉट इट क्लियर? द प्रोसेस कन्वेक्शन आगे मूव करते हैं और आगे मूव करते हुए दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट इज रेडिएशन। अब हमने इतने देर में क्या पढ़ा था, एक मीडियम चाहिए होता था, पहले वाले में सॉलिड मीडियम था, दूसरे वाले में लिक्विड और गैस मीडियम था। अब रेडिएशन इज वन सच हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम एट ऑल, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होती है, ठीक है? और रेडिएशन का एग्जाम्पल हम कहाँ देख सकते हैं, रेडिएशन का एग्जाम्पल हमें दिखता है कि सन से जो हीट आ रही है, भाई साहब स्पेस में देयर इज नो मीडियम, there is no medium at all in space, but even then the heat from the sun reaches us on earth. How does it reach? Radiation. So radiation, as you can see it on the first one, radiation is a form of heat transfer that does not require any medium. That's exactly what I told you right now, ठीक है? It can be used for transfer of heat in vacuum as well. Now you might ask me, what is vacuum? Vacuum मतलब होते हैं बिल्कुल खाली जगह, जहाँ पे कोई कुछ एटम्स, मॉलिक्यूल, सब्सटेंसेस, नथिंग इज अवेलेबल, उस जगह को बोलते हैं वैक्यूम, ठीक है? तो वैक्यूम में भी हीट ट्रांसफर हो सकती है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। मूविंग ऑन, अब एक लास्ट चीज देखेंगे जिसमें हम तीनों चीजों को आराम से समझ जाएंगे। तो क्या हो रहा है, देखो, एक तवा लिया और उसमें कुछ पानी डाला यहाँ पे, तो क्या होगा, अब अगर उस तवे के पास अगर स्टील की ही हैंडल है तो यहाँ पे हो जाएगी कंडक्शन, करेक्ट? यहाँ पे कंडक्शन हो जाएगी आपके पास, राइट? इधर राइट हियर इट इज कंडक्शन, यहाँ पे कंडक्शन हो रही है
और सिंस हमने पानी लिया था तो पानी की वजह से यहाँ पे क्या हो रही है, कन्वेक्शन प्रोसेस भी हो रही है, ठीक है। और जो ये हॉट प्लेट लिया, मान लो ये हॉट प्लेट लिया या इलेक्ट्रिक हीटर ले लिया, तो इसमें से क्या हो रही है, आप दूर पे भी हो, if there is nothing that is touching, you are not touching the heat from the electric heater, but you still feel the heat, right? You still feel the heat. So what is happening? Radiation. तो एक ही जगह पे तीनों mode of transfer of heat is happening: conduction, convection and radiation. All right, guys, are you clear?